Arun, can you see the screen? Yes, sir. Okay. Okay, guys. So we have, in the previous lectures, we have talked about socialism and capitalism. So, I mean, there is a lot of yes, Arun? सर स्क्रीन नहीं आ रही बाकियों को आ रही है क्लास? मुझे सर आ रही है, हमें आ रही है। सर से मैं नेट स्लो होगा मैं देखता हूँ हाँ, चले वो आप फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए. Okay, so we were talking on and off about socialism and capitalism. So anyone knows what is socialism and capitalism is? मेरी बात नहीं कि मैं capitalism के against हूँ, voting होनी चाहिए. What is basically the principles behind capitalism and socialism? Capitalism basically a society is made like in which there is decentralization of the economy in which there is an ample opportunity for the businessman to promote their business, and a basic concept of capitalism is that individuals can be able to do anything they want in the capacity any capacity they want. While in socialism, the definition that I have done, state is responsible for most of the things like job, housing, even clothing, and other main thing of capitalism and socialism is a capitalist society has businessmen ruling it, while in socialist society there is a single party government that usually rules this. Okay, anyone else? Yes. Sir, socialism is oriented towards economic equality, or capitalism is oriented towards political equality. Let's do that. Yes. Capitalism is the way of people hierarchy in society to decide questions. Socialism and society where Yes. Okay, anyone else? Science supports socialism supports the people in society rather than capitalism supports the money in the economy. That basically is. Okay, good. Simply put, very good. Okay. Okay. So basically, there are basically two political economic systems in the world. Predominantly. And socialism and capitalism are the most two extremes. On ground, there is no pure capitalistic society and no socialist society in the world. Everyone has a mixed proportion. But some countries have larger proportion, so we call them capitalist, like USA. And then most countries which have towards socialist structure. So we say, as per them, China, Laos, Cuba, Vietnam. So these are basically socialist, which some people call it communist. And that communism is even the extreme form in a negative connotation. And that is communism. We'll go into this detail. So main thing which you have most of you have talked about is like that is not the pure concept that businessman or money is everything. That is not the concept we have capitalism. That is some materialistic concept given by the system. But actually what happens is it is the basic ideology behind the system modernity. What you have are basically हम कैपिटलिस्ट के नेगेटिव बातों की बात करते हैं हम उसके बारे में सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं सोशलिज्म के बारे में सोचते हैं उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं so basically what is happening all over the world these two economic systems are basically fighting with each other capitalism and socialism is fighting with each other to get superiority in the world okay अब we'll go into the technical या basics of course इसकी हर दोनों सिस्टम में pros भी हैं cons भी हैं दोनों के फायदे और नुकसान हैं
So in the end of this lecture, I expect some of you will favor socialism, some of you will social be of opinion that capitalism is better for the world. Okay, so I'll go into each detail, and therein lies the planning profession, because planning profession is very much or highly linked to the governance system or political system of the world. Planning other professions, they are not influenced by political systems as much as what planners are. Of course, architects maybe socialism के concepts हैं. Russia में architect का style different है, but it's US. We have contemporary styles जो पढ़ते हैं architect के designs क्या है, you would know better than me. So there is a basic rules between that. इसी तरह socialism engineers वगैरह to some extent they are influenced, but urban planning is mostly defined by the political context या political environment. How much they support money or how much they support society. Okay, so हमने realize करना है, हमें economic development भी चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं लोग खुश रहें, उनको economic power है, लेकिन हम लोगों को सहूलियात भी देना चाहते हैं. तो अगर आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं तो इकोनॉमी को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. प्राइवेटाइजेशन या इकोनॉमी को यानी कि किसी को सब्सिडाइज क्यों दे रहे हैं? किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं, सब्सिडाइज रेट पे देंगे. सब्सिडाइज पे देंगे तो आप इकोनॉमी को सैक्रिफाइस करेंगे. उसका बैलेंस करना है मुझे. ये मतलब क्वेश्चन. Let's start with the first one. Have you had how many of you have played Monopoly? Okay. उस पे आप बैकअप हो जाता है जो हाथ चल रहा है. वो क्या है? क्यों आ रहा है? ऐसे ही तो क्या है वो जो गेम ऑफ दैट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स. आप इसे इन्वेस्ट कर रेंट देते हैं, इन एंड आप यू में विन और लूज. ओके, सो बेसिकली आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से है. उससे पहले सारा इंपीरियलिज्म था. व्हाट इज इंपीरियलिज्म? Anyone? Yes. So imperialism was the age in which these nations, European nations, controlled most part of the world. These nations included France, Britain, Russian Empire, and also these nations. So basically, these were kingdoms, not democratic countries, and they were basically known as imperial kingdoms. So basically, imperial is simple king and country. The country ruled by the king and countries. That is it. Then they ruled over the country, so we call it imperialistic nations. But the main concept is that they are ruled by the king and countries, not by the local. Okay, so industrialization basically reduced or totally destroyed the imperialism. So they उसके बाद कैपिटलिज्म का concept है. Yes, any question? Online किसी को? Yes. सर वो ना जब आवाज की सर डिस्टॉर्शन वो कोई पहले से ज्यादा है. और सर अभी जो आपने इंपीरियलिज्म के बारे में बताया सर, ये फ्यूडल लॉर्ड्स के फ्यूडलिज्म इसके बारे में यानी कि सिमिलर है इंपीरियलिज्म. फ्यूडलिज्म इज सिमिलर टू इंपीरियलिज्म. ये फ्यूडलिज्म की कॉन्सेप्ट भी है. वो भी एक पावर अथॉरिटी किंग क्वीन जो पाकिस्तान फ्यूडलिज्म भी कह सकते हैं. समझते हैं इज अ पार्ट ऑफ फ्यूडलिज्म. ओके, जब इंपीरियलिज्म आपकी खत्म की तो आपको कोई सिस्टम चाहिए था मुल्क चलाने के लिए. So उसके बाद दो सिस्टम लाए थे, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म. ओके, नाउ हैपन पावर पॉलिटिक्स. हु विल हैव द पावर ओवर द रिसोर्सेज? पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके पास पावर होगी. ओके ओके, आपने एक कांसेप्ट सुना होगा नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. ये क्या है? नेशनलाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, जबकि प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट मार्केट को ठीक है. तो बेसिकली ये दोनों दो फर्क आ गए, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. वन ऑफ द ये बस प्योर ये भी नहीं है, ये प्योर ये भी नहीं है. ओके, देन इज उसकी वजह से आपके सिस्टम डेवलप कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड द मिक्स सिस्टम, जो कि मोर और लेस सारी कंट्रीज में मिक्स की है. जो सोशलिस्ट कहते हैं वो सोशलिस्ट भी पूरी होती है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी करते हैं. ओके, सबसे पहले हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं. पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड. ठीक है, इकोनॉमी इन रिलेशन टू लॉ सिस्टम एंड गवर्नमेंट
and generation or distribution of income and wealth. आपकी planning profession इन सब के लिए रिवॉल्व करना होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म। तो उसमें मेन चीज जो कहते हैं लोग फ्रीडम, एवरीवन इज फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट एंड देन आल्सो गिव कंपटीशन। आप दोनों दो दोस्त से दो ग्रुप्स हैं क्लास में, या इसमें मैं आपको कहता हूं कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दोनों ने फ्री हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। अब क्या है, दोनों ने बर्गर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, कंपटीशन, वो सरवाइव करेगा मार्केट में जो अच्छा क्वालिटी देगा या परफॉर्मेंस वट एवर इट इज, वो सरवाइव कर जाएगा। दैट इज के मार्केट डायनामिक्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू फॉर सर्वाइवल, कंपटीशन की गेम आ गई। ये कैपिटलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके, फर्स्ट इज इट इज प्राइवेट ओनरशिप एंड द यूज ऑफ कैपिटल। जो चीज आपके नेशन में एग्जिस्ट कर रही है, लैंड, बिल्डिंग, मनी, फाइनेंस, एनीथिंग व्हिच यू हैव, इट्स इंडिविजुअल ओनरशिप। गाड़ी मेरी अपनी गाड़ी, घर मेरा अपना, मेरे नाम पे घर, प्लॉट जो कर लिया मेरे अपने नाम पे, दैट इज कैपिटलिज्म। मैं प्राइवेटली ओन कर सकता हूं हर चीज। नाउ व्हाट हैपेंड, इस प्राइवेट ओनरशिप की वजह से लोगों के अपने प्लॉट से, अपनी उनकी जमीनें थी, उस लिहाज से उन्होंने अपनी प्लानिंग की, जिस लिहाज से उनके ओनरशिप के ब्रांड ओनरशिप के पैटर्न से, उस लिहाज से उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की। तो किसी का हैफेजर्ड है, किसी का स्ट्रेट है, किसी ने अपनी मर्जी से प्लानिंग की। अब मेरा अगर घर है, मेरे अंदर मेरे को एजेंट की जमीन है 10-15 एकड़ की, मेरी मर्जी में किस मर्जी का डिसाइड, आई एम फ्री टू यूज। ओके, दैट इज कैपिटलिज्म। सो इट स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग अर्बनाइजेशन। शहर किस तरह बनेगा, इस चीज ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कि जब एक बंदे को फ्रीडम दी जाती है, अच्छा फ्रीडम का ये मतलब नहीं है इंक्रोचिंग ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स। फ्रीडम का क्या मतलब नहीं है, वो खुद फ्रीडम कर सकता है लेकिन उससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो, दैट इज व्हाट इज फ्रीडम। ओके, वरना तो एनार्की की सिचुएशन बन जाए, chaos हो जाए हर जगह, लड़ाई झगड़े। सो दैट इज नॉट फ्रीडम। ओके, फीचर, इट इज अ प्राइवेट ओनरशिप, मेन it is profit driven system and it all depends on supply and demand. आपने इकोनॉमिक सिस्टम देखी, वो वैसे आप सबने पढ़ी हुई इकोनॉमिक्स, राइट? सप्लाई एंड डिमांड लॉज याद है आपको? क्या है ना? यस, भूलियो। अच्छा, आई गो इनटू इट। Whatever, also called, it's called free enterprise system, in which anyone can start a company and they can start competition and make their own economy. And globally, it is the most recognized system in the world. Capitalist, जो open capitalist. सबसे पहले, emergence of capitalism, it overthrew the kings and queens, royal families, overthrew. Okay, वो खत्म। Now, decentralization from the higher strata. उस टाइम की जो अमीर लोगों से सारे रिसोर्सेज लिए गए, और अमीर को कहते हैं रॉयल फैमिलीज, आपके हाई जेंट्री का जो वर्ड भी हम यूज करते हैं, उस टाइम पे भी होता था, तो उनसे रिसोर्सेज लिए गए। किन लोगों ने लिए? उसको कहते हैं मिडिल क्लास। उस जमाने में पहली रेवोल्यूशन जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चेंजेस आई है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पूरी दुनिया में इम्पैक्ट किया। जिस तरह से उन्होंने रॉयल फैमिली खत्म किए, पूरी दुनिया में उसने like it was two bloody revolution, बहुत लोग मारे थे, रॉयल फैमिलीज खत्म कर दी थी पूरी, क्योंकि उन्होंने भी फिर क्या कहे इनइक्वालिटी। ओके, सो दैट वाज टर्म एज, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सब प्रोनाउंस करेंगे फ्रेंच वर्ड। ओके फ्रेंड्स, प्रोनाउंस किसी और का करते हैं, लिखते हैं किसी और का। ओके, वी पॉइंट वाज व्हाट इज ओके, अब क्या हुआ कि उस टाइम के जो मिडिल क्लास लोग थे, वो सिर्फ मर्चेंट्स या इंडस्ट्रियलिस्ट। उस टाइम जो छोटे छोटे कारोबार थे, जो ट्रेड करते थे, सबसे ज्यादा उनके पास पावर थी, वो लोगों को जॉब्स देते थे, ठीक है। उनको उस टाइम पे जॉइस क्लास कहा,
Then what happened? क्योंकि वो merchants थे, वो profit कमाना चाहते थे, so all systems then started oriented towards profit. Okay? ये है supply demand. ये बना रहे हैं ग्राफ बता रहा था ये जैसे जहां जहां आपकी डिमांड ज्यादा होगी आपको ये आई थिंक इकोनॉमिक्स में आपको प्रिंसिपल याद है कि आप जैसे ही डिमांड ज्यादा होगी वहां सप्लाई आ जाएगी, लेकिन अगर ओवर सप्लाई कर देंगे तो डिमांड गिर जाएगी, और अगर सप्लाई कम होगी सॉरी डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई को मीट करने की कोशिश करेगी। तो हमने लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करना जो कभी होगा या शॉर्टेज में होता है या सरप्लस में होता है, वो इकोनॉमी सबसे बेहतर है जो स्टेबल हो इक्विलिब्रियम की स्टेट। ओके, सो दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, एनीथिंग टू ऐड? अभी हम बेसिक्स में चल रहे हैं, ये अगर आप समझेंगे तो आगे आपको आएगी चीज समझ। ये कर्व है प्राइस से क्वांटिटी, ठीक है, जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा रहेगी प्राइस कम होगी, ठीक है, लेकिन से जब प्राइस ज्यादा होगी ना, ये कर्व है आपको डायनामिक्स को आपको छोटी सी वीडियो है आई थिंक आई शेयर यू द लिंक। बेसिकली क्या है, जब प्राइस ज्यादा होगी लोग अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे क्योंकि प्राइस में प्रॉफिट आएगा, लेकिन जब एक खास हद से सप्लाई निकल जाएगी आगे प्राइस नीचे लग जाएगी तो लोग सप्लाई कम करेंगे। तो दैट इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पूरी इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की दुनिया में जो इकोनॉमिक्स का रिजल्ट की है इस सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, इसके बेसिस पे। एनी क्वेश्चन? तो जहां डिमांड और सप्लाई पहुंच जाती है, ओके, किसी भी सूरत में आप अगर जस्ट पीना चाहते हैं या ड्रग्स, जहां डिमांड होगी सप्लाई पर पहुंच जाएगी, और रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उतनी महंगी पहुंचेगी, कहीं पहुंच जाएगी। सो ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, जब भी कोई चीज चाहिए होती है लोगों को वहां वो चीज मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, सो दैट इज जैसा अमेरिका में हमने कहा थी ना वाटर बबल है, तो डिमांड होगी कि आप ऐसी सप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले नहीं। Yes. The Pablo Escobar, for example, business method we use that is billions. Okay. ठीक है. Okay. Then types of capitalism. There are different types of capitalism. आप सिर्फ एक को नहीं कह सकते कि यूज करनी है. Basic capitalism में पूरा blend भी मौजूद होता है. Different types of capitalism are existing within a state, a capitalistic state. So I'll go one by one. What is virtual capitalism? जो आप बात कर रहे थे. The imperialist country which took resources from the poor nations, exploitation की resources की. That is a type of capitalism. Then is free market capitalism, जिसको technically pure capitalism या कहते हैं the basics of capitalism, कि जहां system work करेगा without minimum interference by the government. Markets करेगा. जितनी सप्लाई है उस चीज की या डिमांड है उस हिसाब से प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और अगर दो डिफरेंट लोग वो चीज सप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन आएगा, दोनों कंपनी चाहेंगे अपनी प्राइस कम करें ताकि कस्टमर में इंटर अट्रैक्ट हो। ओके, व्हाट इज कैपिटलिज्म? दैट इज फ्री कैपिटलिज्म, और रियल फ्रेंच वर्ड है फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेकिन क्या होता है सारी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। मेरा और अहमद के दरमियान फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट भी माना जाएगा नहीं। आना चाहिए सेल्स टैक्स आपकी गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल डिफरेंट। देखा हाँ, मैंने उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना बनाया, उन्होंने मैंने जाके पे किया, तो गवर्नमेंट क्यों सेल्स टैक्स पे किया? उसने क्या है, मेरा क्या गवर्नमेंट को फायदा मिला। ट्रेड के केस में हो सकता है जैसे कोई चीज अगर बाहर एक्सपोर्ट किया और गवर्नमेंट इस पे टैरिफ लगाती है तो जो लोकल यूजर बात यहाँ करेगा उसको गवर्नमेंट पे इंटरफेयर करती है। टेक्निकली जो कैपिटलिज्म है उसको फ्री ऑफ क्या कहते हैं गवर्नमेंट होना चाहिए, जो प्योर सिस्टम है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये चीज फिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट की इसलिए जरूरी है कि लोग उनकी नौकरी बन जाती है।
गवर्नमेंट इंटरफेयर था। एक ही लोग किसी बड़ी कंपनी के साथ एड अप होकर कहते हैं यही कंपनी है, इसी की सपोर्ट करेंगे, और उसके अलावा जो है हमको इंटीग्रेट करते हैं, वो कंपटीशन में कुछ आ नहीं सकती कंपनी। ओके, इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है ट्रांजैक्शंस में कि फेयर ट्रांजैक्शन हो रही है, रेट्स ठीक है नहीं है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, प्लॉट्स, अच्छा ये जो प्लॉट्स के एरियाज की कीमत होती है, डीसी रेट्स, कभी पढ़ा आपने कि इस एरिया की डीसी रेट क्या है, इस मोजा के रेट क्या है, अगर वो है ना, कभी तो पता है डीसी रेट क्या होता है, तो नहीं पता। तो मिस्टर रेट से करते हैं अपने पाकिस्तान इस शहर में ये एरिया है, इसकी पर मरला प्राइस कितनी, पर स्क्वायर फीट प्राइस कितनी, गवर्नमेंट डिसाइड्स, लेकिन ऑन ग्राउंड प्राइसेस नहीं होती। क्या होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, मार्केट में क्या रेट बहुत ज्यादा है, ये है वो है, लेकिन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जरूरी है। क्यों, हमारे क्या करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, स्टेट डेवलपर्स, वो आपस एक दूसरे को प्लॉट बेचेंगे और एक कह देंगे कि इस रेट पे प्लॉट बिक रहा है इस एरिया में, और वो मार्केट ने ऑटोमेटिकली सेट किया गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के वजह। तो क्या होगा, जो आपका प्लॉट, ये जो हाई, ये सारी प्राइसेस चढ़ी गई आजकल लैंड की, क्या हो जाएगा, स्टेट डेवलपर्स ने खुद बनाएंगे। क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड, इसकी प्लॉट की इतनी कीमत क्यों है, खाली प्लॉट है ना, उस पर कोई सोर्स है ना, रेट है, कुछ भी नहीं है। लैंड स्पेकुलेशन तो फिर करती है ना, वो यही करते हैं ना, खुद ही लैंड उड़ा देते हैं पैसे। मेरा अपना लैंड, चलिए मैं आपको बताऊंगा किसका डेवलपमेंट करूंगा, तो आपको मैं अलग तरीके बताऊंगा, लेकिन आपको क्या प्लॉट ऑफ द एरिया, अपना प्लॉटिंग करेंगे आप, किसी दोस्त को इस प्लॉट को 10 लाख में बेच देंगे, अगली पार्टी कोई इंटरेस्टेड होगी, उसको देखिए 10 लाख में मैंने बेचा, आपको मैं 9.5 लाख में दूंगा। एक्चुअली प्राइस है उस लैंड की 2 लाख की या 1.5 लाख, उस पर कुछ खर्चा ही नहीं आया उस बंदे, कुछ भी नहीं हुआ, उसने ऑटोमेटिकली रेज कर दिया प्राइस। कैपिटलिज्म में या बाहर के मुल्कों में इंटरफेरेंस है। पाकिस्तान में रेंट का कैसे खर्चा है, रेंट किस बेस पे सेट करते हैं, आप लोग कुछ रेंटेड एरिया से बाहर रह रहे हैं, कोई एक फ्लैट पे 20,000 दे रहा है, साल वाले फ्लैट को 35,000 दे रहा है, रेट किस बात पे, सर्विसेज फैसिलिटीज, चलिए इसमें तो फिर हम क्वांटिफाई कर सकते हैं सर्विसेज और फैसिलिटीज, लेकिन वो 20,000 का क्या है, वो 10,000 क्यों नहीं, 5,000 क्यों नहीं, वो ऑटोमेटिकली मोनोपोलीज होती है उन एरियाज में जो रेज करते हैं प्राइसेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के, लेकिन वो एक हद तक कर सकते हैं। अगर 35,000 तक रखा है, अगर 40 पे रखेंगे ना तो लोग लेंगे, दैट वुड बी टू मच, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रैटा की सोसाइटी या आप में से जो बंदे जॉब्स कर रहे हैं उनकी पॉकेट से उनसे बाय होती है, वो भी देखना पड़ता है उनको, तुम थोड़ा सा वो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उधर तक लेके चल जाए। अगर प्लॉट्स कल को लोग ना खरीदें, या आपकी जो करोड़ का प्रोजेक्ट है वापस आ जाएगा 50 लाख तक, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की गई होती है चीजें। इस वजह से गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जरूरी हो जाती है कि इंसान बाय नेचर समटाइम्स इज ग्रीडी, सो व्हाट हैपेंस, he or she is greedy, then what happens, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जरूरी हो जाती है, उसमें उनके टैक्स से उसमें कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का पूरा रोल तरीके से एफबीआर टैक्सेस और ये चीजें सब, ये गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है कि लोगों ने प्रॉफिट कमा रहे हैं और सोसाइटी को पे बैक नहीं कर रही, प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये एक बंदे ने इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है, वो इंडस्ट्री से पैसे कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, और उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं, वाटर, एयर, वो पोल्यूट कर रहा है, ओके, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन बेयर करेगा, जो उसने एनवायरनमेंट को तबाही में चाहिए। Then is government comes and interfere, you have to pay me because you are degrading the environment and I have to solve this problem. गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस प्रॉब्लम को उसने वाटर ट्रीटमेंट लगाना है, वटएवर उससे जो भी करना है, तो उस पे वो टैक्स कलेक्ट करेगी कि मैंने वो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है तो अपना प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन उससे कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी बेयर कर रही है, उसके रिस्क सोसाइटी बेयर कर रही है। सो देयरइन लाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू मैनेज सर्टेन एंटरप्राइजेस। क्लियर? ये बड़े मजे की चीज है अगर कैपिटलिज्म वगैरह समझोगे। आपका पूरा दुनिया जो कहते हैं कि क्या गेम है, समझ नहीं आ रही दुनिया में क्या गेम हो रही है, ये गेम हो रही है, ठीक है।
Then is the corporate capitalism. Yes. लेकिन सर रियल एस्टेट में तो इस तरह का हमें निजाम नजर नहीं आता कि जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही हो। अक्सर नहीं करते, तभी तो आपकी पैसे ट्रांसफर मौजूद है। ज्यादातर लोग इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं। Okay, then is a corporate capitalism. अमेरिका में बड़ी कॉमन है। ये तो आप और इस पे तो आप वैसे काफी अगेंस्ट पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि ये इस तरह स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट को गवर्नेंस नहीं करनी चाहिए। पर पूछा आपके प्रेसिडेंट को पूरी पीछे से कंपनीज या लॉबीज पूरी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ट्रम्प के साथ यही हो रहा है, वो कहते हैं ऑयल कंपनीज नहीं बंद करूंगा, तो ऑयल लॉबी सबसे ज्यादा सपोर्ट में ट्रम्प रीइलेक्ट हो ताकि वो कार्बन इमिशंस होती है। जबकि दूसरी पार्टी है वो अगेंस्ट है, तो ऑयल कंपनीज उनके खिलाफ डिस्क्रेडिटिंग या डिसइंफॉर्मेशन, इन्फोडेमिक जिसको आर्टिकल वर्ड यूज हो रहा है वो कहलाते हैं फेक न्यूज। क्लियर? तो इसके हम वैसे ही पूछ सकते, लेकिन टेक्निकली ये कैपिटलिज्म ये किस्म है पूरी एरिया में एग्जिस्टिंग कर रही है। ये माइट बी एग्जिस्टिंग इन न्यूयॉर्क ओनली, बिकॉज वहां बहुत ज्यादा इंटरप्राइजेस हेडक्वार्टर्स वहां शायद ये चीज हो, लेकिन पूरी कंट्री में कॉर्पोरेट का रोल जरूर हो। लेकिन पाकिस्तान में भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म जिसका बड़ी कंट्रीज कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, साउथ कोरिया, उसमें हमेशा ये आप देखें तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नजर आता है। क्लियर? अनदर इज कि जहां गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आप कार्य करेंगे प्रॉफिट गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन अब आप कहते हैं नहीं गवर्नमेंट तो ओन नहीं करेगा, ये तो प्राइवेट करेगा। वो कहना है कि प्राइवेट का जो प्रॉफिट आएगा ना गवर्नमेंट ओन करेगी, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट ही वो इंडिविजुअल है और गवर्नमेंट ही प्रॉफिट कमाएगी। सो क्या है, दिस इज वन ऑफ द सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन चाइना, कि वो कहते हैं हम सोशलिस्ट कंट्री के प्रॉफिट लेके हम लोगों में बांट रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं दैट इज क्वेश्चनेबल। मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा कंट्री में चीज नहीं होती, इसमें कुछ चंक्स नजर आएंगे, कहीं इंटर में चल रहा है किसी शहर में या किसी स्टार्टअप में सोसाइटी में, और कहीं नहीं हो जाए। तो इट्स अ मिक्स सिस्टम, स्टेट कैपिटलिज्म लाइक मे बी जहां के इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहां स्टेट कैपिटलिज्म चल रहा है, आपके नॉर्मल एरियाज में सोशलिज्म चल रहा है। क्लोजली रिजल्ट करता है सोशलिज्म को, ऐसी बात है। सोशलिज्म इज बेसिकली वर्किंग टुवर्ड्स द प्रॉफिट ऑफ पीपल, लोगों को हम कह सकते हैं इट्स अ वेरी क्लोज लेकिन डिफरेंट। सोशलिज्म इज टोटली डिफरेंट, वो कहते हैं जो प्रॉफिट आया ना गवर्नमेंट को उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर पर अगर गवर्नमेंट को हम विजुलाइज करें तो सर गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो आवाम के लिए जाएंगे, सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो खुद खा लें सारा। ठीक है, तो ये जो हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कैसे पैसे कहाँ लेके जाते हैं, जो हमारे टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चनेबल थिंग। ऑल ग्राउंड चीजें बड़ी यूनिक है प्रैक्टिकली, टेक्निकली आप राइट यू राइट, बट आइडियली ना कैपिटलिज्म बेहतर है ना सोशलिज्म बेहतर, वी गोइंग टू सी one of the most prominent you can say advocate or founder of capitalism, उसने कहा था कि there should be free market, free from intervention by the government. Okay, उसने कहा था economic system must be based on supply and demand with free, मतलब कि जहां इंटरेक्शन गवर्नमेंट की रहा। टेक्निकली या लॉजिकली अगर ये हो तो आपको बात समझ में बताइए कि जब कंपटीशन होगा तो दोनों कंपटीटर्स या ज्यादा कंपटीटर्स अपनी प्राइस कम करेंगे, लोएस्ट कॉस्ट पे बेस्ट क्वालिटी चीज कस्टमर को मिलेगी। सही है क्या इसका होगा? क्यों गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से कामयाब हो गए कि वो वैसे ही लोग कंपनीज अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहे थे सर, आपस में बिजनेस डीलिंग करके सर वो फिर एक फिक्स रेट से ऊपर ही डील करते हैं सर, उसके नीचे नहीं जाता सर। ओके, लेकिन आप नोट करें कि सारी प्राइसेस मोरलेस करीब होती हैं, दो रुपए नीचे होती है, 2-3 रुपए। तो उन्होंने यह किया प्रॉफिट तो रखे, लेकिन उन्होंने मिनिमम कॉस्ट निकाली इंडस्ट्री के थ्रू मिनिमम एफर्ट के साथ एफिशिएंट तरीके से इस कॉस्ट पे ये चीज
ओके, इसी तरह आपके लिंक्स जो होते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह, लेट्स से हम गाड़ियों की बात करते हैं। वही गाड़ी थी जो सिटी आपकी बिफोर दिस गवर्नमेंट वो थी 20 होंडा सिटी 1670 की, ओके, इंस्पायर नहीं, सबसे बेसिक मॉडल 1617 का था, राइट। अब वही बेसिक मॉडल 23-24 का, क्या बदला? गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से काम खराब हुआ, टैक्सेस ज्यादा आ रहे हैं सर Uncertainty. फैक्टर सर ये है कि सर जो रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है सर, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं ये सर डॉलर के रेट में डील करती है सर, एट द एंड ऑफ द डे सर इन्होंने तो प्रॉफिट अपना डॉलर में लेना है सर। तो हमारी जो इकोनॉमी की जो एक रिप्रेशन आई है सर डॉलर की इंक्रीज की तो वजह उनको से। ये नहीं फायदा हो गया कि हमें यहाँ तो सस्ती लेबर मिल जाएगी पाकिस्तान में, $1 में वो इतना दुकान एक काम करवा देगा। सर ये सर इसमें ये पॉइंट से बताया गया सर डॉलर का रेट सिर्फ 168 169 उसका अभी की प्राइस इंक्रीज हो रही है और उस टाइम में सस्ती थी गाड़ी सर लेकिन नो दे कैन प्लान रिसोर्सेज की गेम है की बात से कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मैंने बात की थी टैरिफ की, जब इमरान खान आया इसने इम्पोर्ट पे टैरिफ बढ़ा दी, तो वो चीजें सारी इम्पोर्ट हो रही हैं, तो कोई एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है। टैरिफ यही होता ना कि अगर इंटरफेरेंस गवर्नमेंट ना करे तो चाइना आपकी मार्केट को इतना फ्लड कर दे सस्ती चीजों से कि आपकी अपनी एंटरप्राइजेस फेल हो जाएंगी। गवर्नमेंट से टैक्स लगा रहे हैं कि वरना आपकी सोसाइटी पे क्या करेगी? जॉब किसको मिलेगी? कौन जॉब करेगा? इंडस्ट्री में कौन जाएगा? जब आपकी बाहर से चीज सस्ती आ गई तो लोगों ने पाकिस्तानी चीजें छोड़ देंगे, तो आप उस पर टैक्स लगाते हैं कि यहाँ जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी कंपटीशन करें, या बाहर से चीज आएगी वो महंगी करें, पार्ट्स महंगे करें, तो क्या होगा? वो प्राइस बढ़ जाएगी उसकी, तो प्रॉफिट पाकिस्तान से भी बाहर कम जाएगा। यस सर अगर हम गाड़ी की प्राइसेस सर अभी देखें और प्रीवियस डॉलर के साथ कंपेयर करें सर, तो जो जितना डॉलर में इंक्रीज हुआ सर इतनी गाड़ी की सेम है सर। आज नहीं फिलोसफर यू कैन से इज बाटो उससे थ्योरी दी थी कि द प्रोडक्ट विल बी मेड बिकॉज ऑफ द मिनिमम लेबर। एक चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए उतनी लेबर ही यूज होगी जिससे आपका प्रोडक्ट बन सके, and that cost of labor will directly contribute towards the cost of that product. Now ये theories है तो ठीक है, मतलब कि ऑल ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं कि इनोवेशन होगी, इनोवेशन में कंपटीशन होगा, फिर कंपटीशन में इनोवेशन का भी वर्ड आजकल हर कोई कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ जी, तो पंजाबी में क्या कहते हैं? जुगाड़, इनोवेशन। तो ये जो कंपटीशन ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा आएंगे तो हमें इनोवेट करना पड़ेगा। ओके जो टॉपिक है वो है हाउ इट इन्फ्लुएंसेस योर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आप जब भी पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लिंक करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी तो अर्बनाइजेशन शायद फैले ग्रोथ हुई, उसके साथ कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा लिंक है। ओके, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म कटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म कटी है। अब जब प्रॉफिट हो गया कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म ने प्रॉफिट, जब हमारा मेन मकसद ही प्रॉफिट अर्निंग हो गया तो कैपिटलिज्म ने कहा कि चले जी इस रेट पे लैंड बेचें, इस रेट पे डेवलपमेंट करें, चार्जेस उसके ये रखें, मैक्सिमम प्रॉफिट लोग जितना बेयर कर सके। तो इट मूव्ड ऑन टुवर्ड्स सोशल बेनिफिट्स के लोगों को लेट्स से लोगों को फैसिलिटेट करने से ज्यादा प्रॉफिट में शिफ्ट हो गए। तो कैपिटलिज्म सिस्टम में यही है, फैसिलिटेशन कम है, प्रॉफिट ज्यादा, जितना पैसा देंगे उतना काम हो जाए। मकसद भी यही है, क्यों पैसा उसमें सारे काम हो, राइट। तो जो नीडी है या लो इनकम स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है वो सफर करते हैं। ओके, अर्बनाइजेशन अबाउट प्राइमरीली अर्बनाइजेशन शहर बने ही लैंड डेवलपमेंट के साथ, स्टेट लैंड के साथ, और लैंड का ताल्लुक डायरेक्ट आपकी कैपिटलिज्म के साथ। तो आपका जो शहर के लेट्स से शहर के अंदर लैंड है, प्राइम लैंड जिसको हम कहेंगे, ठीक है, उसके रेट, क्योंकि वो यूजुअल बंदा था उसके अपने मर्जी से रखे, अपनी मर्जी से रेट बेचे, अपनी मर्जी से मैं इतने पे बेचूंगा, मैंने बना बेचना ही।
मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे यानी कि कोई कह नहीं सकता क्या बेचो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्विजिशन के लैंड आए हैं ये बाद में आए, आई विल नॉट डिस्कस इट। इस लिहाज से कैपिटलिज्म में द पीपल जिनके पास लैंड था शहर, दे बिकेम रिच, उन्होंने अपने मर्जी से चीजें सेट कर दी। अच्छा, अब द वर्ड आ रहा है प्रोलेटेरिएट्स, ये है उस बोर्गोइस क्लास के नीचे काम करने वाले लोग, प्रोलेटेरिएट, वर्कर्स। अब वर्कर्स को जब लैंड को परचेज नहीं कर सकते तो फिर कच्ची वादियों में जाएंगे, वो लोग शहर के बाहर रहेंगे, उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, या वो किसी हाई डेंसिटी स्लम टाइप एरिया में रहना शुरू करेंगे। So capitalism has one way or another, they have produced slums. Okay, they are the main factors behind which have produced slums in the country, in your city. और कैपिटलिज्म कहता है कि सिटीज में सिर्फ अमीर लोग रह सकते हैं, गरीब के लोग, वो इस चीज को एडवोकेट करता है ये सिस्टम कि लेट्स push marginalized people या minorities even out of the city. जब मैं इस शहर में इस्लामाबाद में आप इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, या लेट्स से आप एजुकेशन यहाँ तक इस तरीके से पहुंचेंगे आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप में कोई कमाल नहीं है, आपसे ज्यादा अक्लमंद लोग को चांस ही नहीं मिला कि वो पढ़ सके। ओके, सो आप इतने नहीं, आप अपने आप को ये ना कि मैंने पीएचडी कर ली, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, मैं इतना लेवल पर पहुंच चुका था अपने घर के उसमें मेरे पेरेंट्स मेरी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते इन अ गुड स्कूल, गुड कॉलेज, गुड यूनिवर्सिटी, देन आई वाज एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी। सो बेसिकली कैश करने से अपॉर्चुनिटी है, नर्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश करें। इस जैसी यूनिवर्सिटी आपको रिसर्च में कोई सपोर्ट नहीं करेगा जितना नर्स करेगा पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई, और अगर यही है अगर आप टेक ऑफ करना चाहते हैं कर ले, वरना डिग्री आपको मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी, लेकिन हाउ यू यूज your time with a nurse that matters a lot. So launch pad use करें. What my point? बाकी आपकी मर्जी है, आपने अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं बदल लें। तो आप क्यों आए फिर एमएस करने? 4 साल। Okay, लेकिन still you are still better off than rest of engineering universities देखें, उसमें तो politics और issues इतने ज्यादा हैं, ठीक है, उधर ये सिस्टम ही नहीं चल रहे, ऑनलाइन सिस्टम कुछ भी नहीं। So you are basically privileged, माने या ना माने, you are privileged, आपको चांस मिला है, you are privileged। तो उन लोगों ने काम करें जो ये कर नहीं सके, उनकी लाइफ बेहतर करें, जो इस इधर तक नहीं पहुंच सके। ये ना समझे मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। ओके, let me back to the point. Capitalistic resources. कैपिटलिज्म क्या कहता है, हम उस प्रोजेक्ट्स वो वाले लगाएं जिससे हमें प्रॉफिट मिले। अब शहर में जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या मोटर बनाएंगे, टूल टैक्स मिलेगा, ये करेंगे, ये मिलेगा। जहां मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा आप गवर्नमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, या गवर्नमेंट या व्हाटएवर एंटिटी। मैं इतना मतलब कि मैं उधर ही इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे प्रॉफिट नजर आएगा। मैं क्यों किसी को फैसिलिटेट करूं, मैंने प्रॉफिट लेना, मेरा मकसद ये है। अगर गवर्नमेंट स्टेट कैपिटलिस्टिक वाली नेचर की जो बात कर रहा हूं, वो करेगी कि हम उधर ही इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से शहर में ऐसे प्रोजेक्ट हुए जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते डायरेक्टली। यहां ये बात आ जाती है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करना है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज्ड होगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को करना। उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट कार की बात करूं, प्राइवेट ओनरशिप, ऑटोमोबाइल्स। आप में से सारे कहेंगे मेरे पास अपनी गाड़ी हो, कहेंगे नहीं कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फेवर करता हूं, लेकिन लेंगे गाड़ी का जैसे मौका मिलेगा अपनी गाड़ी में, सही है ना। आप कितने लोग कहेंगे कि जी मेरे पास गाड़ी होगी लेकिन मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा, और ऐसी बात नहीं है कि कहेंगे नस्ल में ट्रांसपोर्ट नहीं आती, आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपनी गाड़ी घर छोड़ के आएंगे। और ये बात नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अफोर्ड भी कर सकते, उसके बावजूद आप आएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
वो तो फिर ट्रांसपोर्टेशन जो पढ़ेंगे ना उसमें हम ये करेंगे in some cases वो जो फैक्टर्स की बात करेंगे वो ज्यादा बात ओके सो व्हाट माय पॉइंट सो अब ये तो दो आइडियोलॉजीज हैं बहुत फर्क डालती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे शहर कितना बिल्ड होगा कितना बनेगा ये बहुत बड़े फोर्सेस हैं जो प्लानर्स मिस दिस कि ये वजह पीछे इसका बात करते चले आपकी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज आर वर्किंग टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दूसरी कहती है नहीं कि हम पीपल वेलफेयर पे काम करेंगे लाइक पीपल्स पार्टी सोशलिज्म एंड देन देयर इज कैपिटलिस्टिक पार्टीज लाइक रूलिंग जो कहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉफिट इकोनॉमी जबकि इस तरह आप देखें डिफरेंट गवर्नमेंट के दौर में लेट्स से पीपल्स पार्टी के दौर में तनख्वाहें सबसे ज्यादा बढ़ती है गवर्नमेंट सेक्टर में दूसरे इसमें नहीं बढ़ती दूसरे में लोग कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हमारे लेकिन वहां बिजनेस में बड़े खुश होते हैं इस लोगों से इस तरह की पार्टी से कि मेरा बिजनेस बन रहा है मेरा प्रॉफिट आ रहा है इकोनॉमी बन रही है व्हाट इज पॉइंट तो ये दो मेजर फर्क है पॉलिटिकल पार्टीज के ये एक मैनिफेस्टो कहता है कि मैं इकोनॉमी बिजनेसमैन के लिए फायदा करूंगा ये कह रहा है ऐसी पॉलिसीज करूंगा जो लोगों के लिए फायदा करेगा नेशनलाइजेशन वाली नहीं ना तो बेसिकली पीटीआई वाज वंस मैनिफेस्टो था कि ये सोशलिज्म काम करेगी लेकिन ऑन ग्राउंड इट्स नाउ कन्वर्टेड टुवर्ड कैपिटलिज्म तो जब कैपिटलिज्म पे जाएंगे तो पीपल विल लाइक काइंड ऑफ डिस्ट्रस्ट या उनका वो कहेंगे नहीं यार इनकी बात नहीं सुन इन्होंने काम ही कुछ नहीं किया इन्होंने जो दावे किए थे पूरे नहीं किए सो व्हाट हैपेंड के ऑन ग्राउंड क्योंकि हम कैपिटलिस्टिक नेचर है तो सोशलिज्म कितनी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम में वो मसला करते हैं अब समझ आ रही है गेम क्या हो रही है दुनिया में या आपकी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जैसे जर्मनी वगैरह नेदरलैंड्स और जहाँ पे लाइक सोशल वेलफेयर की चीजें होती हैं जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर लाइक वो ओल्ड एज की भी आप शायद प्राइवेट काम करते हैं गवर्नमेंट की आप पेंशन और तो ये कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो कि आप ही कहीं सोशल सिस्टम हैं और है उनका मेजरली कैपिटलिस्ट कंट्रीज ही है अच्छा जो ये कहते हैं ना कि हम कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं लेकिन तो ये मिक्स सिस्टम कैपिटलिज्म नहीं है उनका जो ट्रेड है या जॉब है वो कैपिटलिस्टिक है इनोवेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट सारा कुछ ये कैपिटलिज्म लेकिन जो सोशल साइड के साथ फ्री हेल्थ केयर एजुकेशन सर्विसेज दे रहे हैं वो सोशलिज्म की पॉलिसी अगर आप अमेरिका में देखें तो आजकल यही डिबेट चल रहा है वो कह रहे हैं कि अब फ्री हेल्थ केयर सिस्टम लेके आएंगे बाइडेन कह रहे हैं रिपब्लिकन्स कह रहे हैं ये लेके आएंगे डेमोक्रेट्स कह रहे हैं नहीं ये जो कमाता है उसको इकोनॉमी वो जो अफोर्ड कर सकता है वो उसका मेहनत करेगा बंदा वो खुद कमाएगा तो मुल्क को भी फायदा होगा स्ट्रगल कर उसके स्ट्रगल को तो दे आर टू डिफरेंट फिलॉसफी सो इवन अमेरिका में ओबामा आया था उसने ओबामा कह दिया था वो सोशलिस्टिक पॉलिसी थी जिसको ट्रंप ने आपके साथ खत्म कर दिया नहीं गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम हमारी पार्टी में भी यही होती है हम आपके पुराने प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते नहीं गवर्नमेंट अगर उसकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती और आमतौर पर अगर देखें तो ये स्विच है पूरी दुनिया में सोशलिज्म फिर कैपिटलिस्टिक पार्टी आती है फिर सोशलिस्टिक पार्टी आती है फिर कैपिटलिस्टिक पार्टी आती है ये ट्रेंड इसका चल रहा है कि ना वो कैपिटलिस्टिक सर्वाइव कर सकती है ना सोशलिज्म सर्वाइव कर सकती है पीपल पार्टी को वोट हारा वो सोशलिज्म में थी कैपिटलिस्टिक में मार खा दूसरी पार्टी आ गई पूरी दुनिया में इसका ओबामा से पहले वो बुश था बुश आपका ट्रंप वाली पार्टी से ओबामा 10 साल का पूरा किया ट्रंप अब दूसरी स्ट्रगल आ गया तो इट्स बेसिकली none of the system is ideal और आपकी पार्टी के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर इसलिए बेस्ट कंट्रीज आर लिवेबल क्वालिटी ऑफ साइड क्योंकि एक आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रही है कि आप जॉब करें आप कंपटीशन में आएंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा अगर आप कुछ नहीं करना चाहें फिर भी आपकी कंट्री आपको फैसिलिटेट करेगी so it's a balanced system so you cannot say capitalism is not even China जिसको आप सोशलिस्ट कहते हैं टेक्निकली या प्योरली सोशलिस्ट नहीं है उसमें जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है कंपटीशन हो रहा है इनोवेशन हो रही है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है वो सारी प्राइवेटाइजेशन होकर हो रही है आपके बड़ी बड़ी अलीबाबा ये डिफरेंट जो आपकी आप सुने बड़े बड़े जियोमी ये जो कंपनी है ये क्या बनी कंपटीशन इंटरनेशनली क्यों आई क्योंकि ये इनका प्रॉफिट ओरिएंटेड और कैपिटलिस्टिक नेचर की अमेरिका चाइना में क्या किया उन्होंने जोन्स बनाए उस जोन के अंदर टेक्निकली जो काम हो रहा है जो एससीज कहते हैं सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उसके अंदर जो काम हो रहा है वो प्योरली कैपिटलिस्टिक नेचर का इनोवेशन करें फैक्ट्रियां बने इंडस्ट्रीज लगे प्रॉफिट हो कंपटीशन हो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट चीज बने तो उन्होंने चंक्स बना दिए अपने शहर के अंदर ओवरऑल सोशलिस्टिक है कंट्री लेकिन उसमें चंक्स कैपिटलिज्म के किधर
हाँ इकोनॉमिक जोन से बता अब तो वैसे कैपिटलिस्टिक है, सोशल इकोनॉमिक जोन भी कैपिटलिस्टिक, हमने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, पीछे वाली स्लाइड पर अगर आप जाएं, यस ये लिखा है कि कैपिटलिज्म हैज ऑलवेज बीन द मेजर रीजन बिहाइंड स्क्वांडरिंग ऑफ पब्लिक फंड्स ऑन मेगा प्रोजेक्ट्स। सर मेगा प्रोजेक्ट्स पे अगर फंड्स अगर आप लगा रहे हैं तो उससे जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो बाकी है हमारी जो पॉवर्टी एलिविएशन होगी, क्योंकि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। दूसरी चीज के जो है लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर होगा इसकी वजह से। जॉब, देखिए जॉब, द क्वेश्चन इज कि अगर हम कैपिटलिज्म की वजह से नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो लोगों को तो जॉब्स मिल रही हैं, ओके दैट इज गुड पॉइंट, लेकिन कितने आप पूरी सोसाइटी को तो नहीं मिल रही ना। और अगर उनको जॉब्स मिल रही हैं तो उनकी क्वालिटी लाइफ में बेहतर है, उनको ठीक है, उनका वो हैंड टू माउथ वाला गुजारा हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट जो कंपनी का मालिक कमा रहा है, जो उसको जो हेल्थ के बेनिफिट्स है, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स है, उनके वर्कर्स को नहीं। उतनी याशी वो जो कि आप क्या वर्ड यूज करते हैं याशी, वो उनके वर्कर्स को नहीं है जितनी उनके ओनर्स को। सो बेसिकली इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है शहर में। तो ऑफ कोर्स छोटी थोड़ी फॉर द टेम्परेरी जॉब्स तो क्रिएट हो गई हैं, उन 100 खानदान को तो पूरा हो गया, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, रेस्ट ऑफ द कंट्री है, उनका क्या होगा? उनको जॉब से मिले। सर ऑन द एक्सपेंस ऑफ के जो है कुछ परसेंटेज 1% फैमिलीज को ज्यादा मिल रही है, मगर आपके जो जैसे बेसिक नीड्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये गवर्नमेंट जब प्रोवाइड करने जाती है तो इतनी करप्शन बीच में आ जाती है, आधा तो वहीं से खत्म हो जाता है फंड। तो अगर इस रूट में जा रहे हो, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ कुछ 1% को ज्यादा मिल रहे हैं, एटलीस्ट वो फ्लो तो हो रहे हैं ना आपके। देखिए ना, लेकिन आपका यही क्वेश्चन ये है कि 1% को जो प्रॉफिट मिल रहा है, तो लेकिन आपको 1% एक कैपिटलिज्म वाले बात करते हैं अनइक्वल हैप्पीनेस। मैं लिख देता हूँ तो उनको पता चले। इसमें क्या बेहतर है? आप की डिफाइन करते हैं सारे, मतलब कि I mean, equal misery can also be said to be equal happiness. Okay, this is basically a stance of capitalistic जो नारे लगाते हैं उनकी बात हो रही है। वो ये कहते हैं, ये उनका स्लोगन है बेसिकली, वो कह रहे हैं इक्वल मिजरी को इक्वल हैप्पीनेस भी कहा जा सकता है। ओके, कमिंग बैक, ये देखिए खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा सेक्शन रह गया। सोशलिज्म नहीं स्टार्ट हुआ, ये देखें सोशलिज्म का पूरा लेक्चर अलग है अभी। ओके चलो वाइंड अप, कोई मसला नहीं। ओके चलो, एनी क्वेश्चंस, चलें वाइंड अप कर देते हैं। So I'll take off next class, influence of capitalistic forces on urbanization, यहीं से मैं टेक ऑफ करूँ। अभी तक कोई क्वेश्चन ना समझ आ रही हो कैपिटलिज्म पर, आपने सिर्फ बैठ के सुनना है, मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ। आप पिछली क्लास को भी बताया मैंने कि ये जो हमारा पॉलिटिक हम जो कर रहे हैं, ये सप्लाई डिमांड, आपकी डिमांड है डेली की मैं यहाँ डिग्री दे रहा है सप्लाई करके, ठीक है, लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जिसमें कस्टमर वांट्स द लीस्ट। आपको चाहिए, मैंने फीस ली है, डॉक्टर फॉर्म 8:15 से पहले जाएगा, 8:15 तक बोल दे, आपने फीस ली है, आप लोग तो उसको मैक्सिमाइज करें, प्रॉफिट को एफिशिएंट बनाएं, लेकिन आप लोग कहते हैं सही, ये सबसे मतलब कि इलॉजिकल ट्रांजैक्शन है मार्केट। यस, अचीव नहीं हो सकता, नहीं तो करें ना, कोशिश तो करें ना, कम से कम चले आप Okay, any other question regarding today's lecture? अगर कोई इशू हो आप ईमेल भी कर सकते हैं, या आपके में कोई क्वेश्चन आएगा आप लेक्चर सुने घर जाके, नेक्स्ट क्लास में आप रेज कर सकते हैं नेक्स्ट मंडे। सो ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू।
Yes, Arham, you have question? शेयर कर दिए Sorry? Arham, मुझे बिल्कुल आपकी समझ नहीं आ रही। अलॉट नहीं हुए तो हमें ये स्लाइड शेयर कर सकते हैं। ये चीज आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, वीडियो देख लीजिएगा। मैं स्लाइड्स पे as soon as possible आपको कर दूंगा। Okay, thank you. I'll stop recording.